मेरा साथ लोगे, मेरे साथ लोगे तो यारो तैयार हो। मान लोगे तो जान लोगे। सो सबसे पहले तो हाउ इज द ओवरऑल रिस्पॉन्स ऑन उम्र यार। मैंने और अतीब ने तो जाके 2 दफ़ा देखी है फिल्म। मुझे मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ ऐसे कि ये वाला कंटेंट मुझे पाकिस्तानी थिएटर्स में, पाकिस्तानी स्क्रीन्स पे नजर आ रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। लाइक इट इट फील्स रियली सेटिस्फाइंग टू मी कि यार मैं जा रहा हूँ और मुझे पता है कि यार ये इस तरह का जॉनर है। सही है। इट्स समथिंग डिफरेंट, इट्स समथिंग स्पेक्टिकल। ठीक है। तो मुझे बताएं कि हाउ इज द ओवरऑल रिस्पॉन्स ओवर द फैंस, यूथ, जो खास तौर पे यंग यूथ है, एंड द अदर जनरेशन आल्सो। अमेजिंग यार, रिस्पांस तो बहुत सुपर रिस्पांस मिला है हमें तमाम डेमोग्राफिक से। आई मीन चाहे वो बाहर की आवाम हो या पाकिस्तानी हो, एवरीबडी लव फिल्म। देयर वर सम पीपल जिन्होंने मतलब बकायदा ऐसे ऐसे मैसेजेस भेजे हैं जो हमें रोना आ जाता था पढ़ते हुए कि ओ माय गॉड, is it really happening? Because obviously, I think a lot of our audiences are like they've been waiting for something like this. And मैंने पिछली जितनी भी फिल्मों पे काम किया था, हमेशा कोई ना कोई इस तरह का रिमार्क मेरे ऊपर आता था कि आप ऐसी फिल्म क्यों कर रहे हैं, आप रोम कॉम ना करें, आप ये करें वो करें। तो अब हमने की है एंड उसके अच्छे बहुत मजेदार रिएक्शंस आए हैं। उस्मान। Uh, I think we've gotten some great reviews and responses from people that I was generally expecting that wouldn't like it. But then we've also had a very polarized opinion about the film. And surprisingly, we've gotten very good reviews and very good, like genuine responses from people, Pakistanis abroad. And we were in Dubai to promote the film, and we were there to attend a screening. And we met some Emirati people as well, and they were really surprised. They're like, "We didn't expect this from Pakistan. This doesn't look like a Pakistani film." And that was very reassuring, and that felt very nice. But then again, we have people in our own country who have had a very polarized opinion about the film. And what people need to understand is this is the first of its kind. Yeah. It is the first time anybody has dared to make something like this without it looking like a joke. Exactly. यहाँ पे अक्सर तौर पे whenever somebody tries to do something like this, it either you could tell that the VFX are lacking and it turns into a joke. This is the first time somebody has made something that can be taken seriously, and you can proudly say that this is a Pakistani film. But unfortunately, we've had polarized opinion, and I feel like with something like this, people should have been more. I think people should have been more accepting of the fact that this is Pakistan's first and owning it and being proud of it, which surprisingly a lot of people, Pakistani people that who live abroad are doing. I've gotten so many messages from Indian fans who've seen it in Dubai or Australia, and they've loved it. So that is. That is the feedback that I've got. And honestly, genuinely, we've gone to cinemas, we've gone for cinema visits, and I don't know if people, do that because we went to cinemas, even though, a lot of audience members have come up to me during my previous projects, with dramas or films, and they told me, oh, we didn't like this, or we did like this. And during the cinema visits, we came across audiences that absolutely loved it, and we were getting out of the cinema and they're chanting hum hum hum, and that was a very surreal experience, genuinely. So yeah. Adil sir.
Yeah, honestly, though, I agree with both of them. एक तरफ there is that kind of response which is completely overwhelming. You know, एक इस तरह का भी रिस्पॉन्स आया हमें कि जिसमें ना मतलब यू आर कंप्लीटली ब्लोन अवे विद यार ओके आई डिड नॉट एक्सपेक्ट पीपल टू लाइक इट दिस मच, ठीक है, हालांकि आपने पूरी एफर्ट की होती बट यू बिकॉज यू आर ऑन द मेकिंग साइड ऑफ इट, तो हाँ। आपकी अपनी कुछ जिटरीनेस भी होती है कि अच्छा हाँ, पता देयर इज अ नहीं 50-50 कैसे receive थोड़ा सा किया जाएगा। कि कैसा परसीव होगा एंड ऑल दैट। एग्जैक्टली फिर वो फॉर लाइक फॉर एग्जांपल आपको कई दफा पता भी होता है कि अच्छा ठीक है यार मुझे पता है कि हमारी बनाई हुई प्रोडक्ट में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं फॉर एग्जांपल, बट देन यू नो व्हेन इट एक्चुअली कम्स आउट तो द स्ट्रेंज थिंग वाज कि यू नो लोगों ने कई चीजें वो नोटिस ही नहीं की जो मुझे पता थी कि अच्छा ठीक है यार ऐसा इसमें शायद ये वाले मसले होंगे, राइट, बट मोर इम्पोर्टेंटली जो जोई ने बात की ना कि यार इट वाज अ देखो इट्स अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। अब Yeah, इसमें it ना is. इट्स मिक्स्ड बैग। अब मिक्स बैग किस तरह से कि एक एस्पेक्ट तो उसका ये है कि देयर वाज अ लॉट ऑफ फर्स्ट्स दैट हैपेंड इन दिस मूवी, Yeah. ठीक है, इट वाजंट जस्ट द एक मेजर बिग चंक वाज द वीएफएक्स पार्ट, ठीक है, फिर फॉर एग्जांपल हम ऐसी फिल्म कर रहे हैं जिसमें कोई गाना नहीं है उस तरह, हाँ। कोई नाच गाना नहीं है, ठीक है, हाँ। कोई आइटम नंबर नहीं है, देयर इज नॉट इवन लाइक अ रोमांस इन द फिल्म। Yeah. अब मुझे याद है कि जब असफर और मैं इसके ऊपर काम हमने जब शुरू किया था, जब हम इसको लिख रहे थे, ठीक है, तो इट वाज वन ऑफ दोस थिंग्स कि यू नो हमने पहले एक प्रिंसिपल फैसला किया था कि यार ओके हमने ये काम नहीं करना इस तरह कि हमने इसमें कोई आइटम नंबर नहीं डालना, यू नो, इट वाज अ थिंग कि जब वो ऑडियंस ने उसको रिसीव किया ना वैसे ही, और जब ऑडियंस ने इस बात को अप्रिशिएट किया, इतने लोगों ने ये कहा कि यार इट वाज सो रिफ्रेशिंग टू सी अ स्टोरी rather than a show. Yeah, exactly. The packaging needs to be honest ताकि आवाम को पता हो कि वो क्या जो है कंज्यूम expect करने करें। जा रहे हैं। Yeah, exactly. फिर एज अ राइटर अगर आप मुझसे पूछो तो मेरे लिए देखो लाइक फॉर एग्जांपल अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई पुट इन देयर वर वेरी मेरे लिए दे वर प्रिविलेज बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ डीप नॉलेज दैट वाज इंस्टॉल्ड इन दिस फिल्म। अब वो ऑब्वियसली वो बहुत सारी आवाम नहीं भी पिक करती, ठीक है, लेकिन जो आवाम उसको पिक करती है ना एंड व्हेन दे गेट बैक टू यू कि जी यू नो व्हाट आई नोटिस्ड व्हाट यू डिड देयर, कि आपने जो इसमें मैसेज छोड़ा है जागने का, Yeah. ठीक है, आपने जो इसमें डिफरेंट मैसेजेस छोड़े हैं अबाउट यू नो स्पिरिचुअलिटी एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, हाँ। यू नो अबाउट आइडेंटिटी, अबाउट हु यू आर एटसेट्रा, तो जब ये चीजें सामने आएगा तो दैट्स अ वेरी यू नो ब्यूटीफुल रिस्पांस टू लुक एट। Yeah. For example, like, you know, this is an origin story. या अब मैं आपको एक बहुत मजे की एग्जांपल देता हूं कि ओरिजिन स्टोरी की जगह अगर ये आपको फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैटल ग्राउंड ये या मिडल ऑफ कोई काफ ये स्टोरी शुरू होती फिल्म की, हाँ। where you don't know how Umru became Umru. हाँ। He's just, you'd be like, मिसिंग होल्स context रहता नहीं है है, बहुत सारे। ये हो You're क्या like, रहा है, लोग ये कहते हैं कि ये क्या context नहीं है, फिल्म समझ नहीं आई. You now get an origin story where there's a quantum physics professor हाँ। who never in his life has probably gone to a gym. He's probably gone for like evening walks. हाँ। You know, he's a quantum physics professor. He does ekdam se he gets to find out that he is the chosen one or whatever. He's not going to act like a superhero. Exactly. You know, this is an origin story. So people don't understand. और मुझे ये लगता है, you know, there's that actor, I don't remember his name, but he plays Yondu in Guardians of the Galaxy. Yeah. He said that, and I have nothing against TikTok. I think TikTok is a great platform for people who want to make videos for TikTok, you know. But he said TikTok has ruined the attention span of cinema goers. Yeah. आप अगर देखें पुरानी फिल्में, like I grew up with like very bipolar choices for films. Like I would watch Amitabh Bachchan movies like Tufan and Ajuba, and then I would watch Dog Day Afternoon and Scarface. Yeah. And Godfather. So these were like the 2.5 hours, तीन घंटे की yeah. फिल्में होती थी, and हाँ. people sat down, watched those movies and liked them. That's what cinema was. अब हम लोग we don't dissect the film like we should. कि यार you're watching an origin story. You're not watching, you know, Avengers Endgame. हाँ.
there's a difference. Yeah, yeah. एक साहब का मैंने इंटरव्यू देखा जिन्होंने कोशिश की, उन्होंने पूरी कोशिश की to kind of criticize the entire film, and what he ended up comparing the film with is Shawshank Redemption. He was like, फिल्में होती हैं Shawshank Redemption type. You're seriously going to sit there and compare the first Pakistani sci-fi film to Shawshank Redemption? Like, sometimes I just feel like people just want to hate because they just want to hate. Like if so, you I mean, it's if you're just- going to the gym और आप 3-4 महीने 7 महीने you work hard and you have a physique, a decent physique, सही है, and they're and you gonna start comparing yourself to Kai Green. हाँ, exactly. It doesn't. So yeah. Yeah, सही है, नहीं, you're right, you have a point कि हमारे यहाँ थोड़ा सा acceptance का issue है, थोड़ा सा like, और हमारे यहाँ what India does very fairly अच्छा कि वहाँ पे audience का perspective थोड़ा सा broad हो चुका है. Even they expect Bollywood to give them some content जिसमें deeper level of layering हो, जिसके अंदर कैरेक्टराइजेशन हो, एवरीथिंग हैज टू बी ऑन पॉइंट, और वो फिल्में चलती हैं, सही है. अब ओटीटी आ गया है तो वो ज्यादातर आवाम वहां की भी ओटीटी पे ही चली गई है. क्यों? क्योंकि उनको वो कंटेंट वो नहीं मिल रहा. अब हमारे यहाँ ये एक्सपेरिमेंट जब होता है तो इट हैज टू बी मिक्स्ड. ये तो एक एक्सपेक्टेड चीज होती है कि वंस यू आर एक्सपेरिमेंटिंग ऑन समथिंग तो ये एक मिक्स्ड रिएक्शन होता है. एंड आई कंप्लीटली रिलेट विद यू कि जब हम लोगों ने ये चीज ट्राई की थी तो एवरीवन वाज लाइक, व्हाई डू स्किट्स, डू फनी कॉमेडी, एवरीबॉडी इज डूइंग इट. सही है. तो when you walk against the norms, एक फ्लो चल रहा होता है ना एक अवाम का, और when you're walking against it तो आपको टक्करें लगती हैं. ये तो है. या which असफर सर, हाँ, सेकंड क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, हाँ असफर सर, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को अगर इसके ऊपर अभी बैड क्रिटिक्स भी आ रही हैं तो हम लोगों की आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चीज को इग्नोर करें, क्योंकि आप लोगों को शायद अभी इस चीज का आइडिया नहीं है. We need a trilogy. तो दे रहे होंगे एक जनरल ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से. हाँ, क्या चीज बात सर? वी नीड अ ट्रिलॉजी. हाँ, वो तो हमें चाहिए, लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ. देखें, आप लोगों ने ना ये जो स्टेप उठाया है, अब जैसे हम लोग इस चीज के ऊपर लगे हुए, तो पाकिस्तान में इतनी बड़ी आबादी है, तो सिर्फ हम लोग नहीं है जो जान मार रहे हैं, और भी लोग होंगे जो इन चीजों को करना चाह रहे हैं. तो अब उन लोगों के लिए गेटवे खुलेगा. इवन के उस्मान भाई, मैं आपको अभी रिसेंट एक्सपीरियंस बताता हूँ. मैं अपनी यूनिवर्सिटी में लगा हुआ हूँ कि मुझे मेरी यूनिवर्सिटी स्क्रीनिंग करने दे हमारी सीरीज की. मुझे अपनी यूनिवर्सिटी चांस नहीं दे रही थी. आप लोगों के जाने के बाद मुझे टीचर्स ने पकड़ा है उस्मान भाई कि अब आ जाओ बच्चे, अब आ जाओ, वो जो तुम्हारा था ना, हम तुम्हारा सेमिनार रखते हैं, अब करते हैं. सही है. तो मैं 2 मिनट के लिए ऐसे हो गया कि ये क्या हुआ अब इनको. ठीक है. तो फिर मेरे अंदर से लिटरली दुआएं निकली आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने अपने स्केल पे इस चीज को उठा के नॉर्मलाइज ले किया, आए सिनेमा थोड़ा स्क्रीन सा तक. नॉर्मलाइज किया कि हाँ कि ऐसे कंटेंट भी है और ऐसा कंटेंट वो है, तो ऑटोमेटिकली होगा ये कि और भी फिल्म मेकर्स ट्राई करेंगे टू द सेम एक्सपेरिमेंट दैट यू आर डूइंग, राइट. तो इफ वो जो सबसे ज्यादा रिस्क होता है ना, वो होता है बड़े स्केल पे जो आप लोगों ने लिया, एंड दैट्स रियली कमेंडेबल, रियली कमेंडेबल. देखिए, जो ये वाली चीज होती है ना कि कोई लोग कमेंट्स कर रहे हैं, क्रिटिक कर रहे हैं, ये लोगों का काम है कि वो ये करें, ठीक है ना. अगर उनका काम होता फिल्में बनाना तो वो फिल्में बना रहे होते, वो क्रिटिक ना कर रहे होते. हमारा काम है फिल्में बनाना. सो मैं तो पर्सनली, मैं अपनी बात अगर करूँ, आई डोंट लिसन टू दीस क्रिटिक जो भी आती हैं इस तरह की. कंस्ट्रक्टिव होती है तो मैं उसको अपने बिल्कुल इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करता हूँ. बट जिस लेवल पे रह के हम लोगों ने एक चीज पुल ऑफ की है, वो कोई और उस चीज को ट्राई करेगा तो शायद वो समझेगा कि हम कहाँ से आ रहे हैं. Don't you think these kind of critiques थोड़ा सा उससे प्रोड्यूसर का कॉन्फिडेंस लूज होता है? अगर वो प्रोड्यूसर का एक्सपीरियंस नहीं है तो डेफिनेटली. मैंने अपनी पहली फिल्म जो बनाई थी सया 2013 में, उसके ऊपर क्रिटिक लेके मैं तो रोता रह गया था. जब मैंने जानान बनाई, मुझे एक्चुअल क्रिटिसिज्म तब आना शुरू हुआ. मैंने कहा ओ, असल क्रिटिसिज्म तो यहाँ पे आना शुरू हुआ. पर्ची के बाद मैं बहुत हीट हो गया. मैंने कहा कि आने दो,
bring it on. I don't care. I literally don't care what anybody says about my film. It's my अच्छा film. जब I made it. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है वो बना ले, उसी स्क्रिप्ट पे बना ले, अगर उसमें है इतना दम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरी फिल्म पे उंगली उठाने से पहले पहले अपने गिरेबान में, तो Exactly. मेरा सिर्फ ये उस पे वो होता है। लेकिन अगेन आई डोंट माइंड दीज थिंग्स। इसमें देखो ये वही वाली बात है ना कि आप जब हर एक इंसान हर एक प्रोफेशन में हर एक फील्ड में उसको एक अपोजिंग फोर्स फील होगी, उसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की ऑपोजिशन मिलेगी, चाहे वो जो भी प्रोफेशन। So my point is why I'm sharing this is because कि ये होता है, these things happen, a lot of people just उंगली उठाना तनकीद करना बहुत इजी होता है नहीं, और लोगों कुछ को। बहुत मुझे कुछ बहुत अजीब अजीब क्रिटिसिज्म भी मिले हैं। और मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिले तो मैं आई सिट विद एक तो हेटर्स भी होते हैं ना, मतलब हेटर्स का तो कोई जवाब ही नहीं। अब एक मैंने फिल्म की चिक्कड़, एंड दैट वाज अ वेरी रियलिस्टिक फिल्म। इट वाज रियलिस्टिक सिनेमा। उसमें हम लोगों को मेकअप भी इजाजत नहीं था, हम लोग आते थे वर्दी पुलिस की पहनते थे, बाल ब्रश करते थे, शूटिंग में चले जाते थे। और हमारे जो डायरेक्टर थे उन्होंने बहुत रियलिस्टिक लोग नापा के अच्छे एक्टर्स और ये वो उठाए जो उनको लगता था कि कैरेक्टर को फिट बैठते हैं। मुझे एक साहब का कॉल आई फिल्म के प्रीमियर के बाद, कुछ मेरे ख्याल से अगले दिन या उससे अगले दिन, और उन्होंने कहा कि यार मुझे एक बात बताओ, ये जो साहब हैं जो डायरेक्टर हैं ये पागल हैं? मैंने कहा नहीं। कहते हैं इन्होंने वाकई अपनी जेब से पैसे डाले हैं इस फिल्म के लिए। मैंने कहा हाँ। कहते हैं यार एक गाना नहीं इस फिल्म में, दूसरा इतने बदसूरत लोग एक ही फिल्म में इकट्ठे कौन डालता है? अब आप मुझे ये बताएं कि मैं इस पे क्या जवाब दूं। बट अजीब लोगों खूबसूरती का वो आपको कहना चाहिए था सर। देखें, ब्यूटी तो सब्जेक्टिव होती है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ पीपल। but it's just it's very surprising sometimes to hear the kind of things that we get to hear about certain projects. अच्छा, एक बंदा मुझे इस्लामाबाद में मिला, उसने ही सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। उसको मैंने बताया ना कि यार, उसने मुझसे इसी तरह सवाल किया कि व्हाट्स द फीडबैक ऑफ द फिल्म। मैंने उसको बताया, मैंने कहा इट्स अ मिक्स्ड बैग, कुछ लोगों को बहुत पसंद आ रही है, कुछ लोग बहुत क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। तो वो मुझे ना ऐसे देखना शुरू हो गया। ही सेड समथिंग रियली पॉजिटिव। ही सेड कि यार ये जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इनको बिठा के कोई बंदा सिर्फ ये सवाल करे कि यार ओके लेट्स से दैट द एक्टिंग इज बैड कंपेयर टू व्हाट इन पाकिस्तान, the cinematography is bad compared to what in Pakistan, ठीक है, the story is bad compared to what in Pakistan। कहता है कि इनको कोई बिठा के ये पूछे कि यार तुम कंपैरिजन का स्टैंडर्ड क्या रख रहे हो। What is the blueprint for a sci-fi superhero science fiction film in Pakistan? Please tell me. Exactly, thank you। ये है What ही is ना। the blueprint? There is no blueprint. This is the first time it's been done. The blueprint Exactly. is Amro, yeah। वही अब उस्मान भाई, बात ये है कि जब यहाँ पे आपके सामने मार्वल की फिल्म लगती है, एडवांस बुकिंग चल रही होती है। अभी जैसे वोल्वरिन और डेडपूल आने वाली है, ठीक है, अभी मैं उसका टिकट यार कराने उसके गया। लिए तो मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, उसका मैं टिकट कराने गया तो इतनी मुश्किल से हमें सीट मिली है। तो यहाँ पे ये चल रहा होता है, ठीक है, कि देखिए अच्छा, यार, बाय द वे एक ये चीज है कि ये हमें भी सुनने में आया, ये उमरू के साथ भी हुआ है। A lot of people have messaged us initially कि हमें सीट्स नहीं मिल रही, हमारे साथ भी ये हुआ था। बट देन इट मतलब अगेन वही बात है कि कई जगह पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी था। It was very like we have a group where we share like reviews and stuff, and people, the things that they say. If there's something constructive, we share that. If there is somebody saying कि हमें उधर जहाँ पे आपने सिनेमा की वो शेयर की है वहां पे फिल्म नहीं प्ले हो रही, that as well, the positive feedback as well. तो हमारे पास बहुत हुआ है, और काफी दफा हमारे साथ ये हुआ है कि people are like कि हमें यहाँ पे सीट नहीं मिल रही, यहाँ नहीं मिल रही। तो ये भी हुआ है उमरू के साथ, which is also कि यार हाँ, मतलब that is also great. बासित जो है पहले दिन की ही बात है, रात का टाइम था, जो लेट नाइट शो लग रहा था, 8 साढ़े 8 बजे के करीब था। तो बासित पहुंच गया था, मैं थोड़ा लेट हो गया आने में ना। तो अब बासित ने मुझे बोला कि 2 मिडल सीट्स हैं ई रो में, तो आ जाओ, मैं उसका टिकट ले लेता हूँ। अब ये था कि बासित के पास कैश नहीं था, कह रहा मेरे पास कार्ड है तो तुम लेकर आ जाओ। अब जितनी देर में मैं पहुंचा हूं ना उस्मान भाई, वो सीट्स भी गई।
तो फिर Yeah. हम वहीं बैठे, हम लोगों ने पॉपकॉर्न एंजॉय किए, फिर हम उसके अगला शो लिया हमने। तो ये चीज तो हमने एक्सपीरियंस Yeah, किया, और इस no. चीज की बहुत खुशी हुई दिल से। I mean, it's just again like my wife is my biggest critic. Like वो होता है ना कि आपको एक बंदा जो है आपको वो लेके आता है जमीन पे और आपको आके पटकता है. My wife does that for me, and which is a very good thing because I feel like she keeps me grounded in a way. Like she genuinely hates some characters that I've played. She hates this character I played, Dr. Haris, and she hates Aswad from Hum Kahan Ke Sachte. She's like, if I see these guys ever again, I should like. She's very vocal about it. There is, Usman bhai, there is a Spider-Man moment in the film. Which one? Ant May वाला. Yeah. Yeah, I was so happy कि वो आपने वो फिल्म के थोड़ा सा बाद में आता है, वो काफी वो आता है, बट व्हेन दिस वाज हैपनिंग तो मैंने अतीफ से बोला था कि शी शुड डाई. Yeah. सही है. You know Although- that हाँ वो stakes बढ़ जाती है ना आपकी. हाँ हाँ हाँ. Yeah. तो आई वॉज रियली हैप्पी ऑन दैट. मैंने कहा था कि मैं आपसे कभी डायरेक्ट बात होगी तो मैं बोलूंगा. तो वो मुझे मोमेंट बहुत अच्छा लगा. इट वाज रियली that entire montage Yeah. that entire montage that goes from the apartment to the lair, and Azam and Maz are there, and Chino Bhai comes and all. That is one of my favorite moments in the film. Yeah, That every time I watch it gives me goosebumps. हाँ. There should have been more scenes of her. मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि बट There वो should- रन टाइम की वजह से शायद आई थिंक. वही ना, और अगर आप ज्यादा डालते तो फिर उस पे भी कोई वो आ जाता कि इतना ज्यादा सुपर हीरो फिल्म में ये क्या था. हाँ ये You know, like I had to cut down the film for the release. अच्छा. Like there were 15 minutes were chopped off. अच्छा, what was the main inspiration behind every aspect of the film? जैसे अब जैसे there had to be a design of the jinn. There had to be a design of how would the smoke look. मुझे मेरा दोस्त है सफ़ी. He is a VFX artist in this film. So he told me that आपका भी थोड़ा बहुत VFX background है, and you were directly involved with the VFX team and Usman too. So what was no, it like? I wasn't. Hmm. I would just come and piss them off by pointing out something that was very minor, and they'd be like, "बाकी जो हमने किया है वो नजर नहीं आ रहा." हाँ, that's it. But Asfar is, I think, my go-to guy for VFX is Asfar. Asfar is amazing with VFX. Safiullah की आप बात कह रहे हो ना? Yeah. Safi, yeah. Yeah, Safi was in our team. Yeah. It was, I think, when we were coming up with the idea, me and Atif, I think हम लोगों ने इस पे डिस्कशन की थी, if you remember, कि okay, what will be the demon की एक फॉर्म हम क्या करेंगे. And I was very like मेरा बहुत specific एक दिमाग में था कि I wanted to, ideally speaking, वो कहते हैं ना कि they're made of fire. Mhm. So I wanted to play with fire, but then I wanted to stay away from Ghost Rider. And then करते करते हम स्मोक की तरफ जब आए तो उस पे फिर एक सवाल ये हो गया था कि okay, then smoke is like not fire technically, but then I added that वो जो एक अंदर एक रेड कलर की एक चिंगारी थी, embers भी add किए, Embers, and then एक lightning चल रही है, तो एक hint दे दी कि okay, there is some fiery stuff happening inside of it, and it looks different than normal smoke. मतलब ये चिमनी की स्मोक सिर्फ नहीं है, मतलब चारकोल. मतलब what you did is switch the two things. आपने स्मोक के अंडर फायर को एक एलिमेंट दे दिया, एक लाइफ दे दी. सही है. As opposed to my VFX supervisor then at that time was Hamza Suraj Bajwa. He was the one who pointed this out at one point के we need more layering, because we had many iterations. हमारे पास बहुत versions निकले थे demon के. The base body itself on its own, I wish I could show you all those here. I don't have them with me, but there were so many models that we created, sketches and everything, which
I was not happy with eventually because मुझे वो लग रहा था बहुत complicated होता जा रहा है. I wanted them to be थोड़ा सा simplified for the audience to digest as well as the character ना, because एक तो पहली बात तो ये वो उसको पहले बहुत ज्यादा attention मिल रही थी उस character को. Demon in my film was not an important character. He was just another pawn. And I wanted to focus more on the human side. I wanted Lakka to be more, that dangerous menacing. guy than the He was. अगर मैं demon से डरा रहा हूँ तो फिर Lakka हाँ, he का was तो literally. मतलब वो एस्पेक्ट तो अंडरलाइंड है ही, लेकिन once he speaks, वही मैंने जो बताया कि वो वाला जो सीन है जिसमें स्पॉइलर अलर्ट के जो डेथ सीन है, तो उसके अंदर ही वाज रियली मेनेसिंग. मतलब to nail a villain is much harder than nailing the protagonist. Yeah, so my idea was from the get-go कि I wanted humans to be of that level जिसको हम villain कहें और वो super villain कहें, but not any supernatural कोई चीज. हाँ, वो supernatural चीजें use करे बेशक, that was the idea. So उधर से वो शुरू हुआ था, and then when we were experimenting with whatever visuals that we could come up with, तो उसमें iterations करते we ended up with these multi-layered smoke demon, charcoal black demon with electric lightning and some embers falling out from it. Plus with a face. At first I didn't want a face, but then when I did a test, I had actually I had drawn a face in my storybook. Yeah. In that shot, जो basement में होती है ना sighting. So मैं असल में उसे replicate करा था, but I didn't like the face जो मुझे पहली दफा मिला. तो मैंने वो खत्म किया, and then फिर दोबारा ले आया वापस. So there were so many iterations. करते eventually, I think I was really happy with what we have. Now it's a version जो कि बहुत iterations के बाद हम लोग पहुंचे हैं. So it wasn't कि हमने बैठे बस वहीं पे जो सोच लिया वही चीज आ गई. It takes a long time to sketches, बहुत सारे sketches चलते हैं, and then you come to the models, and then you come to the simulation part, and then again simulation की अलग R&D होती है. उसके अंदर again Hamza, as I mentioned, he was very critical about it कि नहीं ये तो ऐसे जाने ही नहीं देना हमने, without layering हमने करने ही नहीं देना. Especially that scene that we use in the trailer where Amar is going, and there's a lot of that shot was our demo shot, by the way, where जब हमने 3 versions मुझे निकालने थे, one of the demon alone, one was of Lakka controlling the demons, and one when the demon is controlling the human, which is in our case victim was Amar. तो वो जो अमर की शॉट है ऑफ स्क्रीन, that was our demo shot जिससे हमने पास किया था कि yes, this is what we want for the rest of the. अच्छा, वो मुझे सबसे ज्यादा पॉलिश शॉट लगता है, और मुझे मेरा जो फेवरेट आई कॉल इट द मनी शॉट. आई कॉल इट द मनी शॉट, जिसमें वो स्मोक, आई लाइक हाउ द स्मोक इम्प्लोड्स इनसाइड, नॉट उसके एक अपनी लाइफ है स्मोक की. सही है, बहुत iterations हुई हैं उस पे. I can't even count. I couldn't even count. मैं आपको honestly टाइम कभी नहीं बता सकता जितना हमने उसके ऊपर तकरीबन. It took us at least a year to come to that. Hamza was at lead with that, and then Zunain, who did the smoke simulation, was also अपने बाल नोच रहा था कि where is this going? How many times do I have to do the same thing again? But again, there was like, in the end, वो सारी art direction worked together and came out really. And I was maybe it's me. Arthur, maybe you should tell the story this time. अच्छा देखिए, as far as casting goes ना, जब हम स्क्रिप्ट लिख रहे थे, and we were maybe on our, I think we were on our first draft even, ठीक है. अब कई लोग, अब जैसा this nephew of mine मुझसे पूछ रहा था कि जी did उस्मान मुख्तार pull off what you had imagined? मैंने उसको ये बताया, मैंने कहा यार बेटा, what you don't understand is कि जब मैं लिख रहा था ना, तो for some reason by default I was imagining उस्मान मुख्तार, ठीक है. And I remember sharing this with Asfar कि यार बात सुनो, ये for some reason मेरे अंदर ना ये बार बार आ रहा है, एक inclination आ रही है. हाँ, You've ruined the story. अच्छा, so I clearly remember we wrote it on our script. You wrote it on your script, and it was not the first draft. I think it was some
हाँ later मैं Raj सेकंड या थर्ड था हाँ was sitting, you were typing, अभी वर्जन बन रहे थे, and I was at the sofa, and हम लोग वो we were writing down names, हर एक के कैरेक्टर के नाम हाँ के हम सामने। आगे तो नाम लिख रहे थे उस जमाने में माज के सामने भी एक नाम लिखा हुआ था, ओ चीनू भाई यस के सामने एक नाम लिखा हुआ था, लक्का के नाम, हर एक का लिखा हुआ था। अमर के सामने हमने जब नाम लिखा और फिर हमने जब टैली किया एक दूसरे के साथ, आई रोड उस्मान मुख्तार, ही रोड उस्मान। हाँ एग्जैक्टली हम So दोनों ने that एक ही नाम was, लिखा और हमने, oh, that's a sign, that's a sign. But we Oh, said no, stop we it, don't want guys. him. We don't want him because ये तो फैलने की जरूरत नहीं गोल्डन है कोइंसिडेंस। उस्मान भी आपने अपनी प्रोफाइल पे लिखा हुआ है ना, डीसी फैन बॉय। हाँ, तो वो मुझे Yeah. लग रहा है कि वो मैनिफेस्टेशन जो है ना वो अच्छा जो यार, जो जो इसमें I- ना इसमें जो मेरी रीजनिंग थी ना मैं वो बताता हूँ ठीक है जब जब बिकॉज जो कैरेक्टर मैंने इमेजिन किया था ना ये जो इसने प्ले भी किया वैसे ही बिकॉज फ्रॉम द गेट को हमने एक डिसीजन कर लिया था कि ही विल बी क्वांटम मैकेनिक्स प्रोफेसर ठीक है अब इसमें ना देयर इज अ लॉट ऑफ न्यूआंस इन द कैरेक्टर कि उसका एक साइंटिफिक माइंड है हु इज कॉन्स्टेंटली गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट एट द सेम टाइम ठीक है वो अच्छा फिर उसके अंदर देर इज अ सर्टन वो एरोगेंस है उसके अंदर लॉट ऑफ सम थिंग्स टू स्टार्ट विद इन द कैरेक्टर फिर उसका एवोल्यूशन इतना ज्यादा है ड्यूरिंग द फिल्म फ्रॉम दिस एरोगेंट साइंटिफिक माइंड एंड ही इज बीइंग थ्रोन इनटू दिस एंटायर डिफरेंट वर्ल्ड जिसमें उसकी सारी कॉन्सेप्ट्स हैं वो चैलेंज हो रहे हैं हाँ, ही ट्राइज टू फाइंड लॉजिक इन एवरीथिंग ना। एग्जैक्टली अब एक तरफ ये एस्पेक्ट था बट देन एट द सेम टाइम आई ऑल्सो वांटेड हिम टू हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर या ठीक है अब वो एस्पेक्ट ऐसा था कि यार मैं किसी और को भी इमेजिन करता था ना तो वो फॉर सम रीजन कोई एक ना एक एस्पेक्ट आउट हो जाता था तो जब मैं उस्मान को इमेजिन करता था तो इट वुड ऑल कम टुगेदर कि हाँ यार दिस इज द कैरेक्टर यही बनता है हाँ, इट्स क्वाइट हार्ड उस्मान भाई, व्हाट यू डिड रियली वेल के मुझे ऐसा फील हुआ कि जब हम एक पाकिस्तानी माहौल में या उस लैंग्वेज में सुपर हीरोज, क्वांटम मैकेनिक्स और इस तरीके की बातें करते हैं तो देर इज अ सर्टेन टाइप ऑफ डिसबिलीफ कि ये ऑफ लग रहा है, ये मतलब ये हमारे जबान से अच्छा नहीं लगेगा। मतलब अगर हम कुछ सर्टेन एलिमेंट्स, सुपर हीरोइक एलिमेंट्स या साइफाई एलिमेंट्स अपने उर्दू में बोलें तो वो इंग्लिश को मिक्स करने में वो एक अजीब ब्लेंड होता है। बट what your writing did and what उस्मान did brilliantly के उसे एक बैलेंस दिया कि वो ना ज्यादा क्रिंजी लग गया, सही है, एक होता है थोड़ा सा क्रिंजीनेस आती है कि वो ये नहीं होना चाहिए था, बट वो डायलॉग का बैलेंस, एवरीथिंग वाज रियली स्मूथ इन माय ओपिनियन। Well, I mean, this was during COVID. I had shot a project और उसके बाद COVID आ गया and I was I'm very paranoid about my mother's health and everything and she's generally immunocompromised. तो I'd stopped taking up projects because मैंने कहा मैं बाहर जाके घर पे कोई चीज नहीं लाऊंगा अपनी वालदा के लिए। तो for 6-7 months I was actually nobody was working during that time. So we were indoors, हम लोग घर के अंदर ही थे, we weren't going out। ये वो दाढ़ी मेरी इतनी बढ़ गई थी and just like all I was doing was gaming and eating, and that's it. Then I remember before COVID, a friend of ours, Asfar and mine, Umair Alvi, he's a very good journalist, and like an actual film critic. Like Umair is one of those people, जैसे आप अगर 1959 में एक फिल्म आई थी जिसमें मतलब शमीम आरा थी और उनका नाम, हाँ, तो वो आपको उसी वक्त बता देंगे without thinking. So he came to Islamabad and he like, oh, I want to meet. So Asfar and I met him at Jesse's in Islamabad. At that point, Asfar told me, oh, I'm working on something and I can't say much about it right now, but I'll tell you later. अच्छा, मेरे दिमाग में कभी गुजरा ही नहीं कि कोई ऐसी चीज है। मैंने कहा अच्छा, he is doing something. वो वैसे ही जैसे बात होती है और गुजर गई। उसके बाद कोविड आ गया, कोविड में हम लोग जो है वो घर में, and then one fine day I get a call from Asfar and he's like, I want to talk to you about some project.
and can you come to this location in F8? एंड मेरा असफर के साथ वैसे ही मजाक थोड़ा ज्यादा है आई गेस, तो मुझे लगा कि मैं वैसे पता नहीं कोई कॉमेंट भी मारा था मैंने इसको कि मुझे किडनैप तो नहीं कर लोगे या कुछ. सो आई मीन आई जस्ट आई वेंट देयर, आई वाज इन माय शलवार, की दाढ़ी मेरी बड़ी हुई है, हालत मेरी खराब हुई हुई है, एंड I go there and I meet the producers for the first time, and Asfar sitting there, and I sit down and he's like, "Oh, so there's this project and we're keeping it hush hush, and do you know about Umro yaar?" And I'm like, no, he can't be working on. Even at that point, in that moment, I was like, no, he can't be working on Umro yaar. Like Umro yaar ki jo 7 किताबें आई थी उनमें से एक लिटरेचर का पीस है, दैट इज अ रोमांस लव स्टोरी जिसपे हम, एंड ही इज लाइक वी आर वर्किंग ऑन उम्रो यार, एंड आई जस्ट सेड यस. आई डिडंट नो इफ आई एम प्लेइंग उम्रो यार और द गाय हु एट उम्रो यार or like a side character or whatever. I just said yes. अच्छा एक मिनट, पता है, let me reiterate your exact words. I was there. इसके अल्फाज पता है क्या थे? सारा कुछ सुनने के बाद ये बड़ी खामोशी से सुनता रहा पहले सारा कुछ ना, कि असफर ने पूरा इसको बताया, इसको मैंने स्टोरी का भी थोड़ा बहुत बताया, सारा कुछ इसको बताने के बाद जो इधर उधर देख के कहता है, where do I sign? No, because see, the thing is, and then like they narrated the film and the character to me, and Lakka's character was so brilliantly written and such a nuanced character कि आपको डर लगता था, and I'm like, who's going to play, because that is very important, who's going to play Lakka, and like अब मेरे दिमाग में ऑलरेडी एक नाम आ चुका हुआ था, by the way, because I had worked with him and I was talking to him, and Asfar go like Farhan Tahir, and I said that's exactly who I was thinking, because he could have done, and I was like, this is going to be, and till the film released I kept telling people, I was like, they're pranking me. This is not possible. What are the chances of me being in the same film as Farhan Tahir and playing Umro yaar? It's not like, so I till the release I was like, they're pranking me. But again, like, it was a dream come true, regardless of whatever the outcome is. It was a dream come true for, I think I can speak for all the actors on board to work on this project. It is like the inner child जो मेरे और अली काज़मी के, हम दो तो, and फरहान भाई, we've read Umru, we've grown up with these stories, तो हम लोगों के लिए तो our dream, like a childhood dream came true. अभी मैं ये पूछना चाह रहा था आपकी इसी बात से कि मुझे पता चला कि आप लोगों के जो स्टंट्स थे वो आप लोगों ने सारे एक्टर्स ने खुद किए, मतलब कोई स्टंट मैन आप लोगों ने नहीं लिए थे, तो इज इट ट्रू? Yeah, it is true. It is true. हम लोगों को ये था कि अगर हम लोगों ने ना कर दी स्टंट करने से तो शायद ये फिल्म से निकाल ना दें. अच्छा. तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था. I had riggers थे मेरे पास, 2 head rigger, key rigger, and then a stunt coordinator, Ian Temperley, and हम लोगों की जब जितनी भी बिल्कुल इनिशियल मीटिंग्स थी, दौरान की मीटिंग्स थी, उसमें उस वक्त तक हमारी कास्ट हमारे पास नहीं मौजूद थी, लेकिन हमारी साइनिंग हो चुकी थी एवरीवन. तो मैंने उनको जब बताना शुरू किया कि ओके दिस इज द गाय प्लेइंग दिस, सारी मैंने तस्वीरें भेजी, उन्होंने पूरी डिटेल्स मंगवाई मुझसे, उनकी हाइट, वेट एंड एवरीथिंग, बिकॉज दे वांटेड टू फाइंड अ मैच कि जो स्टंट्स करेगा. तो ओरिजिनल प्लान में ये था कि वी विल हैव सम स्टंटमैन एंड वुमेन, बट द थिंग इज कि उसने अपनी रिसर्च जब की एंड देन शेयर्ड कि यार मुझे ये बंदे मिल रहे हैं एंड ये सारे जो हैं ये तो टशकरे से हैं, दे आर लाइक यूरोपियंस एंड इस तरह के, मुझे इधर से ये मिल रहे हैं, एंड आई डोंट थिंक इट्स गोना वर्क फॉर योर फिल्म. तो क्योंकि तुम लोगों का गेटअप वो इस तरह, तुम कवर ज्यादा नहीं कर रहे, तुम लोग दिखा रहे हो एक्चुअल फेसेस प्रॉपर्ली, दाढ़ी मूंछ से भी थोड़ा सा छुप जाता है. सो आवर कैरेक्टर्स वर नॉट, हाँ ठीक है दाढ़ी मूंछ थी, लेकिन दे वर वेरी क्लियर के कौन कौन. So that's why we went with okay, let's just do it with the actors. So उसने मुझसे ये कहा था कि we need the actors on before we go on shoot.
रिहर्सल्स मैंने करनी थी एनीवे मेरे एक्टर्स के साथ, तो उन रिहर्सल्स के दौरान बस मैंने अंदर से ये कहा था कि यू हैव टू बी हियर फॉर स्टंट रिहर्सल्स एज वेल, बिकॉज उससे वो वायर के होती है, साथ थोड़ा सा हाँ, या एक रिग होता है, उसके साथ एक रिहर्सल होना जरूरी होती है, अदरवाइज फिर डिजास्टर्स भी हो सकते हैं। लड़ाई चोटें भी लगी हैं बाय द वे, हाँ नहीं है, हाँ, अली आई वो थिंक तो गॉट हर्ट while he Yeah. was doing that stunt, Pillawala got hit on his head, but nothing serious, कोई ऐसी चीज नहीं हुई। समंदर उस्मान जो है वो उनको हम हार्नेस पहना के बिठा देते थे, फिर थोड़ी देर बाद उस्मान आता था दूर से चलता हुआ मेरी टेबल चेयर के पास, और आई कुड टेल ओ उस्मान नॉट हैप्पी, और फिर उस्मान आके मुझे कहता था कि अकबर यार ये कितनी देर मुझे पहनना, चल अगर मुझे वॉशरूम जाना है तो मैं क्या करूं। क्या करूं। इट्स टफ, इट्स नॉट इजी। आपने, और वो जाहिर है वो लोग स्टंट कोऑर्डिनेटर्स जो होते हैं वो आपको वो ऑन द गो रखना चाहते हैं हाँ कि हाँ बस ये शॉट हुआ हाँ अब अगला आ जाए, तो दे डोंट वांट एनीबॉडी आउट ऑफ देयर वही हार्नेसेस को पहना के रखते हैं, वो मुश्किल होता है उसमें बैठे रहना। हाँ। बट आई थिंक दे डिड अ गुड जॉब, एवरीवन, सबने स्टंट बहुत अच्छे पुल ऑफ किए हैं। उस्मान के तो हाइट फोबिया भी आई थिंक अब तो खत्म हो जाना चाहिए उस्मान आफ्टर। हाँ, बाय फ्लाई। पहले मैं फ्लाइट्स भी नहीं लेता था, हाँ मैं आई वुड ड्राइव टू कराची, बट अब मैं फिर भी आई फ्लाई टू आई कराची। हैव अ हाइट फोबिया, बट इतना नहीं कि फ्लाइट वगैरह, या बट आई डू गेट कॉशियस के बहुत ज्यादा हाइट है इवन इन टॉल बिल्डिंग्स। वो व्हाट आई एम रियली स्केयर्ड ऑफ आपको इज बस अंडर फेयर वाटर। ऑफ हाइट्स होगा, हाँ, फेयर ऑफ हाइट्स है, नॉट